Okay, so we will solve this question, illustration number 29. So the this much content won't be there in your question. Okay, the lengthy questions are never asked in the exam, but since it is there in the textbook, we are solving it. We can't even say whether it will come or not because 20 marks weightage is there for this particular topic, and for 20 marks they may ask such questions. It is already there in the textbook, and they can incorporate in the question paper also, so no doubt. Miss Radhika, traders supplied certain goods worth rupees 5,25,000 and equipment worth rupees 8,50,000. Okay, so who's supplying? Radhika is supplying. That means Radhika is what? Radhika is supplier. Okay, Radhika is supplier. Sorry, Radha is supplier. So you need to make sure who's supplier, because we only add the expenses of supplier. The expenses of recipient is only added when it is done on the request of supplier. Correct? So it is very important to bifurcate who's the supplier and who's the recipient. So who's the supplier? Radha Trader is supplier, and the goods or the equipment, these two things are supplied to whom? Pranjal Works. Pranjal Works is the recipient. Okay, and if you look at the table, there are so many expenses: commission charges, packing charges, insurance, freight, testing, inspection, designing, pre-installation, documentation, and delivery charges. So when we talk about measures Radha Trader, we are going to add all the expenses done by Radha Traders. So expenses done by suppliers आपको सारे ऐड करने हैं. सो राधा ट्रेडर के कॉलम में आपको जो जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं आप सब ऐड करेंगे. बट क्या प्रांजल वर्क्स के भी सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे? डिपेंड्स कि प्रांजल वर्क्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो राधा के बोलने पे हुआ है या फिर नहीं हुआ. वो डिपेंड करता है कि हम लोग वो एक्सपेंसेस को लेंगे या फिर नहीं लेंगे. फिलहाल वी आर श्योर कि राधा ट्रेडर के सारे एक्सपेंसेस हम लोग को लेने हैं. प्रांजल वर्क्स के एक्सपेंसेस लेने हैं या नहीं? आपको दो कॉलम किसका दिख रहा है? यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के गुड्स हैं. ठीक है, गुड्स एंड इक्विपमेंट्स, दो अलग अलग पार्ट है आपके कंपोनेंट. वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको गुड्स का अलग मालूम करना है और इक्विपमेंट का अलग मालूम करना है. तो जैसे यहाँ पे दो कॉलम है, हम लोग भी दो कॉलम बनाने वाले. ओके, सो व्हाट इट सेज, फर्स्ट वन इट सेज all the expenses incurred by Messrs Pranjal Works. ठीक है, ये इन एक्सपेंसेस की बात कर रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ हो तो मैं इधर से आपको करके बताता हूँ. नहीं है. ओके. So they are talking about these expenses. So we have already taken all of this. राधा के सारे हम लोग ने ले लिए हैं. प्रांजल में से वो क्या बोलता है? In case of Pranjal, it says all the expenses incurred by Pranjal Works were on behalf of Messrs Radha except the testing charges. Now tell me, टेस्टिंग चार्जेस के अलावा सारे एक्सपेंसेस राधा के बोलने पर ही हुए. सो क्या हम लोग टेस्टिंग चार्जेस भी लेंगे? चैट बॉक्स में डालो, क्या हम टेस्टिंग चार्जेस भी लेंगे? टेस्टिंग चार्जेस जो है इसकी बात कर रहा हूं. राधा वर्क्स के, राधा ट्रेडर्स के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे. प्रांजल के सारे एक्सपेंसेस जो है वो राधा के बोलने पे ही हुए हैं सिवाय टेस्टिंग चार्जेस के, है ना, एक्सेप्ट दी टेस्टिंग चार्जेस. तो क्या हम लोग टेस्टिंग चार्जेस लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में? यस और नो? No. पुट इट इन द चैट बॉक्स. इज No, इट sir. ऑडिबल? Okay, Pratna says no. Very good. We are not going to take testing charges because it is not on behalf of Radha Traders. Very good. Gupta Dipanjali.
ओके मैंने कितनी बार लेकिन आपको बोला है द रोल नंबर शुड बी फर्स्ट, है ना, पहले रोल नंबर लिखा जाए उसके बाद आपका नाम लिखो। The only 3-digit roll number, no bracket, no dot, no fancy name, nothing. Even if it is only the roll number, that is also fine, but it should be in the beginning, not at the end. Okay, so that is the correct way of putting your name. Here, one thing is understood. Point number 1 says all the expenses of Pranjal works were done on behalf of Radha Traders except the testing charges. Means testing charges are not done on behalf of Radha Traders, and whenever the expenses are not done on behalf of supplier, those expenses won't be taken into account. Okay, for the value of supplier. जिस चीज का सप्लायर को पता ना हो या जो एक्सपेंसेस उसके बिहाफ पे ना हो, वो एक्सपेंसेस हम लोग नहीं लेते। वन थिंग इज क्लियर कि हम लोग को प्रांजल वर्क्स का टेस्टिंग चार्जेस हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। ओके, सो दिस कहाँ गया टेस्टिंग चार्जेस, दिस 1000 एंड दिस 1500 हम लोग नहीं लेंगे। The packing charges paid by Messrs Radha Trader was on the request of Pranjal Works. See, जहां तक की बात है राधा ट्रेडर्स की, तो राधा ट्रेडर ने एक्सपेंसेस किया है, वो रिक्वेस्ट पे है प्रांजल की या नहीं है, हम लोग को उससे लेना देना नहीं। राधा के सारे एक्सपेंसेस हम लोग कंसीडर करने वाले, वेदर इट इज रिक्वेस्टेड बाय प्रांजल और नॉट, इट इज नॉट द कंसर्न। क्लियर है, राधा ट्रेडर के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे क्योंकि वो सप्लायर है, वो रिक्वेस्ट प्रांजल कर रहा है नहीं कर रहा है, वेदर इट इज ऑन बिहाफ ऑफ प्रांजल, वेदर इट इज रिक्वेस्टेड बाय प्रांजल और नॉट, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। राधा के सारे एक्सपेंसेस हम लोग ले रहे हैं, इट इज ओनली अबाउट प्रांजल, इट इज ओनली अबाउट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के एक्सपेंसेस लेने से पहले you have to make sure that the expenses are done on behalf of supplier. Is this clear? राधा के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे, प्रांजल के एक्सपेंसेस लेने के टाइम पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वो एक्सपेंसेस राधा के बिहाफ पे होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस और नो? See, I can't hear anything, so the only option you have is to put it in the chat box. Okay, very good, Tanalakshmi. Good. Gupta Dipanjali. Yes, Ansari Parveen. Good. Okay. So मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप सप्लायर के सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब बात आती है रेसिपिएंट की, so we will consider only those expenses which is done on behalf of supplier. That's it. इतना आपको याद रखना है। Okay, now point number B does not have any value क्योंकि वो राधा के एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, तो राधा के एक्सपेंसेस रिक्वेस्ट करे प्रांजल या ना करे उससे हम लोग को लेना देना नहीं। Now point number C, Messrs Radha Trader gave discount 20,000 on equipment। तो आपको पता है डिस्काउंट जो है नॉर्मली एंड में हम लोग माइनस कर देते हैं। Now this is very important, सब्सिडी वाला पार्ट। Subsidy of 18,000 was received on goods from central government and of 20,000 on equipment from small business association। मुझे बताइए आप कि आप कौन सी सब्सिडी जो है वो लेंगे, कौन सी सब्सिडी हम लेते हैं, कौन सी सब्सिडी हम इग्नोर करते हैं। चलो 20,000 लेंगे हम लोग, वेरी गुड सानिया, हम लोग गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं लेते, ठीक है, इट इज एग्जेम्प्ट, हम लोग वाली सब्सिडी नहीं लेंगे। अदर देन स्टेट, वेरी गुड प्रार्थना, ठीक है, अदर देन स्टेट, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग बाकी की सब्सिडी लेते हैं। मतलब गुड्स वाली सब्सिडी हम लोग इग्नोर करेंगे, इक्विपमेंट वाली सब्सिडी हम लोग ऐड कर देंगे 20,000, ठीक है। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आती है कि हम लोग अदर देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसीडर करते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी एग्जेम्प्ट है, वो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। So it is only 20,000 which is going to be considered for equipment। goods का जो सब्सिडी है वो आप इग्नोर कर सकते हैं because it is by central government। Okay, price of goods includes GST at 5%। प्राइस दिया है क्या कहीं पे? अच्छा, ऊपर प्राइस दिया है ना, 5,25,000 जो ऊपर प्राइस दिया है
उसमें 5% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली हम लोग को वो निकालना पड़ेगा। एंड कैसे निकालेंगे 5%? whenever it is inclusive, कैसे निकालते हैं 5%? चलो देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। गुड्स की प्राइस में 5% इंक्लूडेड है, तो 5% निकालने के लिए 5% कैलकुलेट कैसे करें? Yes, I am waiting for the answer. How to calculate 5% on 5,25,000? 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे। वेरी गुड सानिया। 5 डिवाइड बाय 105। 5 डिवाइड बाय 105। वेरी गुड प्रार्थना। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? दीपांजलि वेरी गुड। मुस्कान वेरी गुड। 5 डिवाइड बाय 105। दीपांजलि इट इज नॉट 115, इट इज 105। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे 100 में ऐड हो जाएगा, तो इट इज 5 डिवाइड बाय 105। आई एम श्योर आपका टाइपिंग में एरर हुआ है, अदरवाइज it is clear, it is 105। 5 divided by 105, this is the way to calculate GST। ठीक है, 5 divided by 105, 12 divided by 112, 10 divided by 110, 20 divided by 120। when it is inclusive आप 5% नहीं डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे, you have to calculate 5 divided by 105, make it very very sure। जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन इक्विपमेंट इज 12%। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि इंक्लूडेड है, ये सिर्फ बोल रहा है कि इतना एप्लीकेबल है, तो लेट इट बी। टैक्सेस अदर देन सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज सेपरेटली बाय राधा ट्रेडर्स फॉर गुड्स 12,000 एंड फॉर इक्विपमेंट 21,000। वो बोल रहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी के अलावा कुछ टैक्सेस थे, तो क्या ये टैक्सेस हम लोग लेंगे? सी हम लोग सीजीएसटी नहीं लेते, एसजीएसटी नहीं लेते, आईजीएसटी नहीं लेते। अदर देन दिस कोई टैक्सेस होगा तो क्या हम लोग लेंगे? क्या हम लोग टैक्सेस लेते हैं वैल्यू में? अदर देन जीएसटी हम लोग टैक्सेस लेते हैं। ठीक है, यस, ओके। ये हमने फॉर्मेट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेट मैंने बहुत छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू इट, आप रीड कर लो, ठीक है। कौन सी सब्सिडी हम लोग लेंगे, ठीक है, डिस्काउंट का क्या होगा, ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस हम लोग लेते हैं, कौन से टैक्सेस हम लोग लेते हैं। वी टेक ऑल द टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस होगा तो हम लोग लेंगे। जीएसटी क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज जीएसटी तो कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई नाउ। ओके, दिस क्वेश्चन इज बिग, ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन won't come for 10 marks। it is not possible कि ऐसे क्वेश्चन आपको 10 marks के लिए आए। if it will come for obviously 20 marks। So I will take the format. I am going to paste it over here. I will zoom it to a little so that we can all see this. Okay. So this is our question number, illustration number. मैं mic को पास रखूं. Okay. So this is our illustration number 29. Calculation of value of supply, particulars, amount. Okay, ये सारी चीजें मैं delete कर दे रहा हूँ. Okay. Now we will calculate it from here. Since we have two columns, one is for goods and one is for equipment. We have two type of commodity, or two type of goods, or two type of things where we have to calculate the value of supply. So we have two type of supplies, we can see one is goods and one is equipment, and for both of them the price will be calculated separately. Okay, Radha Trader supplies 5,25,000 for goods and equipment for 8,50,000. Okay, so the price is
5,25,000 and this is 8,50,000. ओके, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, वो मैं एट द एंड देख लूंगा। आपको अभी करना है तो आप अभी लेस कर लो, मुझे कोई इशू नहीं। लेस जीएसटी इंक्लूडेड इन गुड्स, गुड्स की प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड है। हाउ टू कैलकुलेट इज 5,25,000 into 5 divided by 105. This is already given in the question कि 5% included है प्राइस में, and whenever the price includes GST, then you will have to deduct the price also. This is 5,25,000, sorry, this is 5 lakh without GST, this is 8,50,000 without GST. आप बोलेंगे सर आपने इसमें से क्यों नहीं निकाला, बिकॉज इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है बेटा। Price should always be excluding GST. Okay, now we are going to add certain expenses. What are those expenses? First is commission charges. First is commission charges. गुड्स का कितना है, यहाँ पे आप 10,000 देखेंगे, यहाँ पर 0 है, 10,000 है गुड्स के केस में। इक्विपमेंट के केस में यहाँ पर आप देखेंगे 15,000। क्या हम कमीशन चार्जेस लेंगे प्रांजल वर्क्स का? यस। क्यों लेंगे? बिकॉज इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ राधा। कहाँ लिखा है? लिखा है कि सारे एक्सपेंसेस राधा के बिहाफ पे सिवाय टेस्टिंग चार्जेस के। तो सिर्फ टेस्टिंग चार्जेस जो है वही राधा के बिहाफ पे नहीं है, तो वही सिर्फ नहीं लेंगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस ले लेंगे। पैकिंग चार्जेस यहाँ पे 7,000, यहाँ पे 2,000 ले लो। Then we have insurance charges. यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 and 8,000, 80 हो गया। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है समझने में? फ्रेट फ्रेट आप देखेंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 3,500 है, फिर यहाँ पे 7,000 है और यहाँ पे 4,700 है। तो मैं गुड्स वाला 7,000 तो लिख देता हूँ और इक्विपमेंट वाला आप देखेंगे तो 3,500 प्लस 4,700, 2 हो गया है ना। इधर 3,500 और यहाँ पे 4,700, तो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एल्स आपको अगर प्रांजल का और राधा का अलग अलग दिखाना है तो आप अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, टेस्टिंग चार्जेस। टेस्टिंग चार्जेस में क्या याद रखना है? टेस्टिंग चार्जेस जो राधा ने किए थे, प्रांजल ने किया था, वो नॉट ऑन बिहाफ ऑफ राधा है, तो हम लोग नहीं ले पाएंगे टेस्टिंग चार्जेस। देख सकते हो प्रांजल वर्क्स में है सिर्फ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अपन कुछ ले ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो है टेस्टिंग चार्जेस, वो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि इट इज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ राधा, तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर ये एक्सपेंसेस राधा ने किए होते तो हम लोग लेते थे, यस, तब तो हम लोग को लेना पड़ता। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो राधा के कॉलम में कुछ है ही नहीं, इट इज ओनली यहाँ पर ये सिर्फ प्रांजल में ही। और प्रांजल के एक्सपेंसेस हम लोग नहीं ले सकते टेस्टिंग चार्जेस की, बिकॉज इट इज नॉट डन ऑन बिहाफ ऑफ राधा। इंस्पेक्शन चार्जेस पे जाते हैं। इंस्पेक्शन चार्जेस में 570 एंड 1350। डिजाइनिंग चार्जेस है, डिजाइनिंग चार्जेस इज 2270 and 3290। प्री इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्री कंसल्टेंसी
57307040. Documentation. Documentation is 11. और अगर आप इक्विपमेंट का देखेंगे तो इस तरफ दिया है 2900. डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी चार्जेस तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1480 है यहाँ पर, वो ले लिया है. ठीक है, कोई दिक्कत है? ये वाली लाइन हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, टेस्टिंग चार्जेस को नहीं लिया, ये इसके कोई मतलब नहीं था पॉइंट बी का. डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. उससे पहले सब्सिडी भी है ना, सब्सिडी भी है. टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा कोई टैक्सेस है वो भी दिखा मैंने क्वेश्चन में है. लास्ट में एंड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड लेस कर देंगे डिस्काउंट. ठीक है, तो डिस्काउंट किसका है? इक्विपमेंट पे डिस्काउंट है 20,000. इक्विपमेंट यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पे 20,000. डिस्काउंट है तो मैंने इसको माइनस में रख लिया है. ठीक है, ओके ओके. अदर देन दैट सब्सिडी 18,000 हम नहीं लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की. 20,000 इक्विपमेंट वाली जो है वो ले लेंगे यहाँ पे. तो सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट. ठीक है, ओके. प्राइस ही हमने कंसीडर कर दिया है, इंक्लूडेड था तो निकाल दिया. जीएसटी इक्विपमेंट पे 12% है, इसकी ऐसा बोला नहीं है कि इंक्लूडेड है या नहीं. और टैक्सेस अदर देन जीएसटी गुड्स के ऊपर 12,000 है और इक्विपमेंट पे 21,000. So now I am going to add them all. सेम यहाँ पे. ओके, ऊपर का तो ऐड ही नहीं किया. मेन प्राइस तो हमने ऐड ही नहीं किया है. हाँ, नाउ इट्स ओके. 5,47,000 और यहाँ पर जो है वो 9,40,000 आफ्टर डिस्काउंट. तो यहाँ पे तो डिस्काउंट है नहीं तो सेम आएगा. यहाँ पर 20,000 माइनस कर देंगे तो 9 लाख. ठीक है, माइनस क्यों हो रहा है? ठीक है, तो 9,40,000 माइनस 20 कितना हो गया? 9,20,000. दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, so I will share this solution in your group. Okay, now it's time for the attendance. ओके, आई होप आपने 3 डिजिट का रोल नंबर लिख रखा है. मैं कई लोगों को देख रहा हूं तो यहाँ पे उन्होंने अलग से, खान फरीन ने सिर्फ 33 लिखा है. यू शुड राइट 033. अब्दुल रहमान का रोल नंबर नहीं है. अंसारी इरम का रोल नंबर नहीं है. बुशरा एंड जुबैदा का रोल नंबर नहीं है. खान अंजुमन ने एंड में लिखा है रोल नंबर. वैसे ही कई लोगों ने एंड में लिखा हुआ है. इट शुड बी इन द बिगिनिंग. ओके, इट शुड बी इन दी बिगिनिंग. रेशमा ने रोल नंबर नहीं लिखा, शिव देवी ने नहीं लिखा, सोनम ने एंड में लिखा हुआ है. ठीक है, क्लिक ऑन योर नेम, राइट 3 डिजिट रोल नंबर बिफोर योर नेम. मनीषा, नेहा, प्रणाली, सरदार, नौशीन, शहनाज,
शिव देवी, हाँ सोनू का तो बराबर है, एसके साहिल का ही बराबर है, सोनम निषाद, आप लोग जरा अपना रोल नंबर करेक्ट करो, इट शुड बी इन द बिगिनिंग, you should write your roll number in the beginning, see what how others have done, आप लोगों को भी वैसे ही करना है, otherwise you will not get your attendance, तो मुझे बोलना नहीं है. And someone has put bracket which is not required. सफा ने भी वही किया है, I am changing it. Bracket is not required in your name, in your roll number, sorry. So if you do this type of mistake, I will get it because आपका roll number कभी भी correct नहीं होगा. So this is 10 o'clock. Show student. All are absent first. Okay. So we will start now. First is Iram, roll number 3. Then we have 11. Then we have 13. 13 के बाद 22, 26. After 26 is 33, 35, 38. 33, 35, 38. Then we have 42, 67, 42 and 67. Then we have 74, 75, 74, 75. Then we have 86, 94. Then we have 100, 102, 103, 100, 102, 103. Okay. 109, 114, 115, 116, 117, 118 line से 114, 15, 16, 17, 18. 114, 15, 16, 17, 18. ठीक है, ओके आ रहा हूँ. अगर आपका रोल नंबर बीच में मिस हो गया है तो आप चैट बॉक्स में डाल दो, कोई इशू नहीं है. आई विल कंसिडर 121, 122, 125, 130, 133, 134, 138, 139, 145, 166, 169, 171, 174, 188. ओके, उसके बाद 194. अब उसके बाद कुछ रोल नंबर्स हैं जिनको मार्क करना पड़ेगा, जो कि है आपके 95, नेहा, फिर 107. अब ये बीच बीच में से आएंगे बिकॉज इन्होंने प्रॉपरली रीनेम नहीं किया है खुद को. तो 107 हो गया. शिव देवी का रोल नंबर नहीं मालूम. 136 एंड 137. 136 एंड 137 ये दोनों भी हो गए. ओके, देन 186 होना. ओके, नाउ टेल मी किसका. अच्छा, मनाली और दीपाली का है 133, 180 ना. 180 एंड 133. तो 133 तो प्रेजेंट है. ओके, और कहीं पे भी दो रोल नंबर नहीं है. ओके, किसका रह गया है बोल दो चैट बॉक्स में. ओके, काफी सारे रोल नंबर्स हैं यहाँ पे. सर अब रोल नंबर कैसे एडिट करूं, मुझे नहीं आता. अपने नाम पे क्लिक करो बेटा, या तो चैट बॉक्स में रोल नंबर डाल दो, आई विल मार्क इट. ओके,
So Sardar Nausheen 44, 44 हाँ मार्क किया आपका। फिर लक्ष्मी इज 103, वो तो मार्क किया हुआ है। शिव देवी 25, उसके बाद सोनू 121, ओके मार्क है ये भी। 166, ये भी मार्क है। 44 तो किया ना, ऊपर भी था 44, ओके। 25 भी हो गया। 33 है क्या? 33 हाँ ये भी मार्क है। ओके 140, 137, 140 हुआ, 137 ऑलरेडी। 101 भी कर दिया बेटा। 44 कितनी बार लिखोगे? 44 हो चुका है, प्रेजेंट है 44। 42 हो गया है। शिव देवी हो गया 121। 121 प्रेजेंट है ऑलरेडी। 115 प्रेजेंट है। 182 हो गया। नेक्स्ट 140। अरे बेटा मैंने मार्क किया हुआ है तो आप लोग क्यों बार बार बोल रहे हो? ओके 101, 145 भी है। 46 हो गया। 46 38 हो गया। 182 पहले ही हो गया है। 33 हो गया है। सर आप फिर से दे रहे हैं। ओके डन बेटा, मैंने ऑलरेडी वहां से ले लिया था आपका रोल नंबर तो। ओके एनीथिंग इफ इट इज देयर, if you want I will repeat the present roll number. Roll number 3, roll number 11, roll number 13, 22, 25, 26, 33, 35, 38, 42, 44, 46, 67, 74, 75, 86, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 114, 15, 16, 17, 18 लाइन से 121, 122, then 125, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 166, 169, 171, 174, 180, 182, 186, 188 and 194. जिसका हुआ अटेंडेंस लेफ्ट हो सकते हैं, यस दे कैन गो। बेटा 85 मैंने मार्क किया ही होगा ना, नहीं किया है क्या? ओके 85 कर दिया। ये बेटा हो गया 94, क्यों डाल रहे हो वापस से? वन 169 आप हैं तो 179 का क्यों दे रहे हैं? बुशरा, ये बुशरा ही है ना? अच्छा दो लोग साथ में, ठीक है। 170 प्रेजेंट। 136 कितनी बार डालते हो गया, चलो एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग अभी। 102 का भी प्रेजेंट हो गया है। चलो अब बार बार आप लोग यही डालते रहेंगे, एक बार ध्यान से नहीं सुनते हो।